बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले तलबा को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी की तरफ से सलाम। हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 10.2 अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ एंड 9.2 अकॉर्डिंग टू माय बुक उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा जो प्रॉब्लम है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को तो जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं टाइप 4 का क्वेश्चन है वैसे ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके अंदर होंगे, इन दोनों कंडीशनों को यूज़ करते हुए उन दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। वाई डबल डैश को लिखा जा सकता है d2y/dx²। पेपर में अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए डी की बजाय d² के बजाय d2y/dx दिया हो d2y/dx², तो परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। अब d/dx हमने रखा हुआ है d के बराबर और d2/dx² d² के बराबर है, तो ये फिर बनेगा d² - 8d + 15 इंटू y इज इक्वल टू 9x e⁻² 2x। अब जो है इट इज ऑफ द फॉर्म, किससे मिलती है इसकी शक्ल, f of d इंटू y इज इक्वल टू f of x। पहले हम इसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फॉर yc। पुट करेंगे हम f of d इंटू y को 0 के इक्वल। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, f of m इज इक्वल टू 0। d की जगह पे हम पुट करेंगे m² - 8m + 15 इज इक्वल टू 0। अब हम अगर इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहें तो 3 5s are 15, फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल। -3m - 5m + 15 is equal to 0. Now you can see that m is common from here. In the bracket you will have m - 3 and -5 is common from here. In the bracket you will have m - 3 is equal to 0. Now you can see m - 3 is common from here. In the bracket you will have m - 5. We are able to find the two values of m. The first value is m is equal to 3. The second one is m is equal to 5. Therefore my complementary solution will be e goes to 3x plus b e goes to 5x. This is my complementary solution. Now I am going to find particular integral solution. Now we find yp. As you know that yp can be found out by putting the terms of which contains d in the denominator. You will have 1 over f of d into f of x. This is a method how we can find the particular integral solution. Write down the value of fd, which is in the form d² - 8d plus 15. The function, the value of f of x is given 9x e goes to 2x. Now two functions are multiplying with one another, therefore we have to shift one of them towards the left side. For that we shall use shift theorem. Using shift theorem, when we will shift e goes to 2x, replace d by d plus 2. You will get d plus 2 का square minus 8 into d plus 2 plus 15 into 9x.
Now I will simplify this expression, which is d square plus 4d plus 4 minus 8d minus 16 plus 15. Now the function towards right is 9x. In the next step, it will become d square. Now we have minus 8d and this is 4d. After subtraction, we just have minus 4d. 15 plus 4 is 19. 19 minus 16. Your answer is plus 3. Here the function is 9x. Now because the function is just like a polynomial function, therefore I will use binomial series. For that I need 1 as a first term. Therefore I will take 3 common out of these. In the bracket I will have 1 plus d square minus 4d divided by 3. When it will jump over towards the numerator, its power will become negative. And you have yp is equal to e goes to 2x. 2 has been missed out from here. E goes to 2x. And 3 will go in the denominator and it will become 1. I am just going to take minus common as well from here. 1 minus 4d minus d square divided by 3. Expand by binomial series. Expand by binomial series. What you will get? What is the binomial series? 1 plus x power n is equal to 1 plus n into x. We shall use this formula just only for 2 terms. The reason is that the term of polynomial contains a degree 1 which can be differentiated only one time. Therefore, we need not d square d cube as well as the other terms which contains the higher power of d. E goes to 2x divided by 3. After applying binomial series, I have 1 plus n into x. This minus and minus will become plus 4d minus d square divided by 3 into 9x. Now I will multiply this 9x to both these terms. What we shall get? It will become 9x 4 divided by 3d into 9x. Did not write d square because this function cannot be differentiated twice. That's the reason why I am ignoring d square from here. In the next step, 3x divided by 3, your answer is 9x plus 4 by 3. When you will differentiate 9x, your answer is just 9. This 3 will be cancelled this 9. The answer is 3. 3 will multiply by 4. Your answer is 12. Now, what will be your y? Y is equal to yc plus yp. I have already calculated yc, that is given in, you can see that in equation number 1. So using 1 and 2, y will be a e goes to 3x plus b e goes to 5x plus 9. When this will be multiplied by this 1, you will have just only 3x e goes to 3x. Sorry, here is not a 3x, 2x. That a mistake has been done by me.
3x, when it will multiply with this one, 3x, e goes to 2x. This 3 will be cancelled with this 12. You will have just only 4. 4 into e goes to 2x. This is your solution. This is the value of y. Now I have to find the value of these two arbitrary constants. In order to find these two values, I have to use the initial conditions. The first one is y0 is equal to 5, but y0 is equal to 5. What are the meaning of that? It means that at x is equal to 0, the value of y is equal to 5. Therefore, I will write in place of y its value, which is 5. So therefore 5 is equal to, I will put x is equal to 0 here. You will have a e goes to 0x plus b goes to 0x plus 3 into 0, e goes to 0x, and plus 4, e goes to 0x. In the next step, you will have 5 is equal to a plus b. It will become 0 and it is 4. Therefore, a plus b is equal to 1. Let us suppose that this is my equation number 4. Now I have another condition in the form of y dash. Y dash 0 is equal to 10. For that I have to differentiate equation number 3 one time. Differentiate 3 with respect to x. I will get y dash. Its derivative will be 3a, e goes to 3x. 5b, e goes to 5x. Here I have to use the product rule. The differentiation of x is 1. 3 into e goes to 2. Differentiation of e goes to 2 is 2, e goes to 2x, and that is 6 x e goes to 2x plus 8 e goes to 2x. Now what is the second condition? Y dash 0 is equal to 10. That is, at x is equal to 10, y dash at x is equal to 0, y dash is equal to 10. So therefore I will put 10 in place of y dash and 0 here. What I will get? 3 into e goes to 0, 5b e goes to 0, 3 into e goes to 0, plus 6 into 0, e goes to 0, plus 8 into e goes to 0. 10 is equal to 3a plus 5b plus 3 plus 8. In the next step I will have 3a plus 5b is equal to 8 plus 3 is 10, 8 plus 3 are 11, 11 minus 10, your answer is minus 1. Now it is quite easy to find out the value of a and b from equation number 4 as well as equation number 5. From 4, a is equal to 1 minus b. Let us suppose this is my equation number 6. Put in 5. You will have 3. In place of a, I will have 1 minus b plus 5b is equal to minus 1. In the next step, 3 minus 3b plus 5b is equal to minus 1.
5 minus 3, your answer is 2b. Minus 1 minus 3, your answer is minus 4. So therefore, b is equal to minus 2. Now, put this b is equal to minus 2 in equation number 6. You will have the value of a. Put b is equal to minus 2 in number 6. The value of a will be a is equal to 1 minus minus 2 minus minus plus a is equal to 3. So therefore 3 will become, put a is equal to 3, b is equal to minus 2 in equation number 3. The solution will be y is equal to, in place of a you will have 3. 3 into e goes to 3x plus b is equal to minus 2. Minus 2 e goes to 5x. Then you have 3x e goes to 2x plus 4 e goes to 2x. This is the answer. This is the solution of question number 16. क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो मैं आपको एज ए प्रैक्टिस आपके लिए छोड़ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहा हूँ. इसके बाद एक क्वेश्चन और हल करूँगा, वो अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है. और उसके अलावा जो एक दो पार्ट बच जाएंगे वो आपने खुद ट्राई करने हैं. क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको लिखा जा सकता है d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 2 माइनस 8x. फर्दर d स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x. फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम पुट कर देते हैं f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके बराबर आ जाती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f ऑफ m इज इक्वल टू 0. तो d की जगह पे m पुट करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. तो सॉल्यूशन आपका आ गया y c इज इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x. नाउ वी फाइंड yp. Now we find yp. yp किसके बराबर होता है? 1 ओवर f ऑफ d इंटू f ऑफ x. d वाली रकमों को डिनोमिनेटर में ले गए, d स्क्वायर माइनस 4 और f ऑफ x मेरे पास है 2 माइनस 8x. इसको मैं दो हिस्सों में कन्वर्ट करूंगा. पहले में आएगा yp इज इक्वल टू 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8x. कांस्टेंट के लिए तो हम e की पावर 0x का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लेते हैं. डी स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू ई की पावर 0x. लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए बाइनोमियल सीरीज का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए मैं 4 कॉमन निकालता हूं. माइनस 4 कॉमन निकाल लेते हैं. माइनस 4 कॉमन निकाला तो 1 माइनस डी स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, ओके, इंटू 8x. ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा. इधर d की जगह पे क्या पुट करेंगे? 0 माइनस 4 2 e की पावर 0 x माइनस माइनस प्लस
ये 1/4 को साइड पे कर दो, इसको चूक कर ऊपर ले जाओ, ऊपर जाके इसकी पावर क्या बनेगी -1। ये आ गया -2/4, ये 1 के बराबर आ जाएगा, प्लस इसके ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर देते हैं 1 + n × x। अब 8x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 1/2 प्लस 1/4 × 8x प्लस 1/4 d² × 8x। अब इसको 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, इसका आंसर वैसे ही 0 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/4 × 8x और ये 0 के बराबर आ गया। ये इसके साथ कैंसिल होगा, -1/2 प्लस 2x आ जाएगा। ये था मेरे पास yp, तो y किसके बराबर आ गया yc प्लस yp। y इज इक्वल टू yc मैंने निकाला था a इंटू e⁻²x प्लस b इंटू e⁻²x, और ये आ गया -1/2 प्लस 2x। पहली इनिशियल कंडीशन क्या है, y0 इज इक्वल टू 0। कंडीशन सही है, y0 इज इक्वल टू 0। y की जगह पे 0 लगा दिया, तो इधर x की जगह पे भी 0 लगाना पड़ेगा। +2 × 0, 0 इज इक्वल टू a प्लस b -1/2। तो a प्लस b की कीमत आ गई 1/2 के बराबर। एहतियातन यहां से a निकाल के ना रख लूं, काम आ जाएगा। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर, इससे पहले हमने कोई नंबर नहीं रखा, इसका नाम नंबर 1 रखते हैं और ये नंबर 2। अब हमें चाहिए y'0, तो लिहाजा 1 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, y' इज इक्वल टू 2a e⁻²x। इसका डेरिवेटिव क्या आया -2b e⁻²x। -1/2 कांस्टेंट है, 2x का 2 आ गया। बट y'0 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 y' किसके बराबर आ गया 5 के बराबर आ गया। y' की जगह पे 5 पुट कर दें, x की जगह पे 0, 2a × e⁻0 -2b e⁻0 प्लस 2। तो 5 इज इक्वल टू 2a -2b प्लस 2। इस 2 को उठाकर उधर ले जाएं, 3 इज इक्वल टू 2a -2b। लेट अस सपोज दैट दिस इज ओवर नंबर 3। अब 2 को उठाकर 3 में पुट कर दें, पुट 2 इन 3, 3 इज इक्वल टू a की जगह पे आ गया 2 × 1/2 -2b, 3 इज इक्वल टू 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 -2b -2b। इसको उठाकर इधर लेके आए, 2 रह गया, ये बन गया -4b। तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, b इज इक्वल टू -1/2। इस b की वैल्यू को उठाकर 2 के अंदर पुट कर दें, पुट इनटू, तो a किसके बराबर आ जाएगा 1/2 -1/2 माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2, आंसर इज 1। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1/2, पुट कर दें जी 2 के अंदर, 1 के अंदर। देयरफॉर 1 बिकम्स, 1 किसके बराबर आ जाएगी, y इज इक्वल टू a की जगह पे आ गया 1 e⁻²x, b की जगह पे आ गया -1/2 e⁻²x, -1/2 प्लस 2x। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी वजूहात क्या हैं ये थोड़ी देर बाद आपको पता चलेंगी जब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन का आगाज़ करूं, ये एक कुछ क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूं। मसलन ये देखें, y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू x कॉस ऑफ x। अगर साइन की जगह पे कॉस आ जाए तो क्वेश्चन कैसे हल करना है। फिर दूसरा है y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू a की पावर x। इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया। और इससे मिलता जुलता एक और बना लें, y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 2 की पावर x। और फोर्थ क्वेश्चन जो है उसको y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू साइन क्यूब x अगर आ जाए, साइन क्यूब x आ जाए तो कैसे हल करेंगे। y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू कॉस क्यूब x आ जाए तो कैसे हल करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर नहीं दिए हुए। इसका तरीकाकार तो आपको पता चल जाएगा जब मैं वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब a की पावर x, इसको जो f ऑफ x बनाना है, f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर log इंटू a की पावर x लिखा जा सकता है ना। e और log कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो ये x साइड पे आ जाएगा तो ये बनेगा log ऑफ a। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो d की जगह पे पुट करना है। तो इस क्वेश्चन को हल करके तो जहां पे d आएगा ना, d की जगह पे log ऑफ a लगा देना है आपने। और इसी तरह ये किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर 2x log ऑफ 2। तो फिर आपने d की जगह पे log ऑफ 2 रिप्लेस कर देना है। अब साइन क्यूब और कॉस क्यूब x के लिए इसका हिंट मैं देता हूं। साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन ऑफ x माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब x। यहां से आपने 4 साइन क्यूब x की कीमत निकाल लेनी है, 3 साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ 3x। यहां से साइन ऑफ क्यूब की वैल्यू निकल आएगी 3/4 साइन ऑफ x। और आगे साइन और साइन 3x को कैसे डील करना है इसका तरीका आपको आता है। तो cos 3x का इसी तरह फार्मूला लगा के, ठीक है, cos 3x का आ जाएगा 4 cos ऑफ क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x। यहां से cos क्यूब x की कीमत निकाल के, तो ये क्वेश्चन जो है ये एज ए प्रैक्टिस आपने करने हैं। इसके अलावा जहां से मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप इंशाल्लाह ताला कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखें यहां पे x इंटू साइन एक्स आ रहा है। पहले तो वाई सी निकालते हैं, उसमें तो हमें कोई तकलीफ नहीं है ना। d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस y इज इक्वल टू x इंटू साइन ऑफ x। डी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू x साइन ऑफ x। इट इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फॉर वाई सी पुट कर दें आप f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। जब 0 के बराबर पुट किया तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके बराबर आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f ऑफ m इज इक्वल टू 0, m स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा। अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, आयोटा से पहले 0 है, 0x आ गया इंटू a कॉस ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x। किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर, a कॉस ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x। ये आ गया जी हमारे पास yc। अब चलते हैं yp की तरफ। नाउ वी फाइंड yp, नाउ वी फाइंड yp। और yp आप लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, 1 ओवर f ऑफ d इंटू f ऑफ x। तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएं जरा। yp इज इक्वल टू 1 ओवर डी स्क्वेयर
प्लस 1 x इंटू साइन ऑफ x। अब प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इससे पहले जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते थे तो उसमें से एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल होता था, तो उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम इधर शिफ्ट कर देते थे और फिर जो भी फंक्शन इधर रहता था उसका इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, तो अब इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। आपको याद है, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है कि e की पावर x किसके बराबर होता है? cos ऑफ x प्लस आयोटा साइन ऑफ x। e की पावर आयोटा x इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस आयोटा साइन ऑफ x। इसको कहते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट किसका? e की पावर आयोटा x का। किसके बराबर है? cos ऑफ x के बराबर। और इसका इमेजिनरी पार्ट e की पावर आयोटा x का किसके बराबर है? साइन x के बराबर। ठीक है, तो इसलिए फिर चूंकि मुझे खाली साइन x चाहिए तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x किसके बराबर आ जाएगा? साइन x के बराबर आ जाएगा। अगर आपको पेपर में साइन की जगह पे cos x आ जाए तो फिर यहां पे इमेजिनरी की बजाय आएगा रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x और यहां पे क्या आ जाएगा? cos ऑफ x आ जाएगा। क्लियर? आप देखें, देयरफॉर one becomes yp is equal to 1 over d square plus 1 x into इमेजिनरी पार्ट। किसका इमेजिनरी पार्ट? e की पावर आयोटा x का इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है, इसको मैं शिफ्ट करता हूं उधर यूजिंग शिफ्ट थ्योरम। शिफ्ट थ्योरम इसका इस्तेमाल किया, yp बराबर आ गया e की पावर इमेजिनरी पार्ट ऑफ im का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x इंटू डी की जगह पे क्या आ जाएगा? d प्लस आयोटा का स्क्वायर और यहां पे x बच गया। प्लस d की जगह पे d प्लस आयोटा आ गया और प्लस 1 और ये x एज इट इज आ गया। अब जो है इसका स्क्वायर खोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा d आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 इंटू x। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के इक्वल। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x इंटू 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा d -1 प्लस 1 इंटू x। अगले स्टेप में ये क्या आ गया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x इंटू 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा d इंटू x। अब यहां पे देखें ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए मुझे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए? बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने के लिए मुझे टर्म के अंदर 1 की जरूरत है। तो 1 कैसे आएगा? जब मैं 2 आयोटा d को कॉमन लूंगा। तो अगले स्टेप में मैं 2 आयोटा d को कॉमन लेने जा रहा हूं। yp इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका? आयोटा x का इंटू 1 ओवर 2 आयोटा d मैंने कॉमन निकाला, ये इसकी जगह पे आ गया 1 प्लस डी स्क्वायर ओवर 2 आयोटा d इंटू x।
इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स इंटू 1/2 आयोटा डी, ये 1/d को बाद में इंटीग्रेशन के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे, 1 प्लस ये एक डी तो डी से कट गया, d/2 आयोटा आ गया, ऊपर जाके पावर कितनी बन गई इसकी, -1। अब इसके ऊपर बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स इंटू 1/2 आयोटा डी, 1 माइनस d/2 आयोटा इंटू एक्स। एक्स को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स इंटू 1/2 आयोटा इंटू डी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x माइनस 1/2 आयोटा इंटू डी एक्स। एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, 1 के इक्वल। इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स इंटू 1/2 आयोटा इंटू 1/d एक्स माइनस 1/2 आयोटा। ठीक 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 ठीक। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स इंटू 1/2 आयोटा, इसको इंटीग्रेट किया तो x²/2 आ गया, माइनस इसको इंटीग्रेट किया तो x/2 आयोटा आ गया। अब इस 2 आयोटा के साथ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स, तो x²/4 आयोटा आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 आयोटा स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के इक्वल। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स, अब ये देखें ये आयोटा डिनोमिनेटर में है, तो आयोटा के साथ ऊपर भी ज़रब दे दें, आयोटा के साथ नीचे भी ज़रब दे दें, ताकि डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म हो जाए, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे जब -1 पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अगले स्टेप में ये आ गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स इंटू, ये माइनस के बराबर आ जाएगा, माइनस आयोटा x²/4 प्लस x/4। दिस इज फर्दर इक्वल टू yp इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स इज इक्वल टू x माइनस आयोटा x का स्क्वायर ओवर 4। अब e की पावर आयोटा x किसके बराबर था, e की पावर आयोटा x बराबर था cos ऑफ x प्लस आयोटा साइन ऑफ x, x माइनस आयोटा x का स्क्वायर ओवर 4। अब हमें क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको लिखते जाएंगे, जो रियल पार्ट आएगा उसको छोड़ते जाएंगे। आफ्टर मल्टीप्लाइंग राइट ओनली इमेजिनरी पार्ट। तो yp इज इक्वल टू, अब ये देखें ये 1/4 तो बाहर आ गया ना, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। cos x को x के साथ ज़रब दिया तो जवाब रियल आ गया, छोड़ दें। इसको x² के साथ ज़रब दी तो आयोटा आ गया, इसको लिख लें x² cos ऑफ x। आयोटा साइन x को x के साथ ज़रब देंगे तो आयोटा आया, इसको लिख लें आप x इंटू साइन ऑफ x। इसको इसके साथ ज़रब देंगे, आयोटा स्क्वायर वो रियल बन जाएगा, उसको छोड़ दें। तो ये हमारे पास आ गया yp। तो y किसके बराबर होता है, yc प्लस yp। y हमने किसी ज़माने में yc निकाला था, क्या था वो, a cos ऑफ x, b a cos ऑफ x
बी साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स बाई 4 इंटू साइन ऑफ एक्स। वैसे ये सवाल यहीं तक होना चाहिए था, उसने इनिशियल कंडीशन दे के ना बोंगी मारी हुई है, सवाल ही बहुत लेंथी हो गया। चलें जी, इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 2। पहली कंडीशन क्या है, y0 इज इक्वल टू 1, y0 इज इक्वल टू 1, दैट इज एट x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। x की जगह पे 0 पुट करें जी, a cos ऑफ 0 b साइन ऑफ 0, ये 0 हो गया, इसके अंदर भी x आ रहा है, 0 हो गया। 1 इज इक्वल टू a, अरे वाह क्या बात है, ये तो बड़े आराम से निकला है, सो सिंपल सो इजी। अब जो है मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, मैं बाकी का पार्ट उस तरफ हल करता हूँ। अब ये देखें, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, y डैश के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो y डैश बराबर आ गया cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, b का साइन का cos आ गया, फिर आगे लगेगी f इंटू जी फॉर्म, माइनस एक्स स्क्वायर को किया तो 2x ओवर 4 आ गया इंटू कॉस ऑफ x, फिर एक्स स्क्वायर ओवर 4 एज इट इज, कॉस को करेंगे तो माइनस साइन, यहां पे माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x बाई 4 1 बाई 4, x को डिफरेंशिएट किया 1 इंटू साइन ऑफ x, उसके बाद साइन को किया तो कॉस आ गया, कॉस ऑफ x। तो y डैश बराबर है माइनस a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x माइनस x बाई 2 कॉस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ x बाई 4 प्लस x कॉस ऑफ x बाई 4। अब y डैश 0 की कंडीशन जो है वो मिट चुकी है। y डैश 0 इज इक्वल टू 2, बट y डैश 0 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि एट x इज इक्वल टू 0 y डैश की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, y डैश की जगह पे 2, x की जगह पे 0, माइनस a साइन ऑफ 0 प्लस b कॉस ऑफ 0, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, साइन 0 आ गया, इसके अंदर 0 है, 0 आ गया, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू ये 0 प्लस b, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। अब ये a और b को उठाकर कहां पुट करेंगे, इनको उठाकर पुट करेंगे जी हम नंबर 2 में, पुट इन 2। तो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस 2 साइन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉस ऑफ x प्लस x साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 4। इसके साथ ही ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब कल मैं आपको काशी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जो आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।